چین کے بعد پاکستانی فوج کا بھی بھارت کو کرارا جواب. لائن آف کنٹرول پر لائن کراس کرنے والا ڈرون مار گرایا. ISPR کے مطابق رک چکری سیکٹر میں بھارتی جاسوس ڈرون 650 میٹر تک اندر گھس آیا تھا. بھارت نے رواں برس 1105 بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی. مودی کی انتہا پسند حکومت خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار. وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کر دیا پھر خدشات کا اظہار. متنازع شہریت ایکٹ کے بعد بنگلہ دیش، چین اور نیپال کو جنگی جرم ہے. بھارتی فوجیوں کی مار مار کر درگت بنا ڈالی، پیچھے دھکیل کر علاقے میں مورچے بنا لیے. بھارتی فوج چینی فوجیوں کی منت سماجت پر اتر آئے. چینی صدر نے فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی. کہا فوجی قومی سلامتی اور ترقیات. بھارت نے لداخ کے متنازع علاقے میں تعمیرات شروع کر دی. مودی سرکار نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا بھارت افغان امن عمل کے خلاف بھی سازشیں کرتا رہا ہے. اعداد و شمار کے تضاد نے متاثرین کے زخم ہرے کر دیے. وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق 91 لاشیں نکالی گئیں. محکمہ صحت والے کہتے ہیں جائے وقوع سے 97 لاشیں منتقل کی گئیں. فلاحی تنظیموں کے سرد خانوں میں 95 لاشیں پہنچائی گئی. پیاروں کے جسد خاکی کی حوالگی کے منتظر لواحقین پر ایک ایک پل بھاری. 5 سال میں 19 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی پریس بریفنگ. کہا نون لیگ نے 26 ارب اور ہماری پنجاب حکومت نے 2 ارب 40 کروڑ کی سبسڈی دی. 20 ارب کی سبسڈی دینے والے شاہد خاقان ٹارزن بن کر کمیشن میں پیش ہوئے لیکن جواب نہ دے سکے. سب سے زیادہ فائدہ او منی گروپ سے اٹھایا. نون لیگ نے سبسڈی دی لیکن 5 سال تک چینی کی قیمت بھی بڑھنے نہیں دی. مریم اورنگزیب کا جوابی وار. کہا بتائیں چینی کی قلت کے باوجود وزیر اعظم نے برآمد کی اجازت کیوں دی. شہزاد اکبر نے اصل مجرموں کو پچھلی گلی سے بھگا دیا. معصوم وزیر اعلیٰ وزیر خزانہ کمیشن کو مطمئن نہ کر سکے. امید کی آج وزیر اعلیٰ استعفیٰ آئے گا. حکومت کورونا کے بجائے نون لیگ سے لڑ رہی ہے. عید ختم ہو گئی لیکن بازاروں میں رش ختم نہ ہو سکا. پشاور میں شہریوں نے حفاظتی تدابیر کے بغیر بازاروں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا. دکاندار بھی پریشان، کرفیو لگانے کا مطالبہ کر دیا. لاہور میں بھی کورونا کے پھیلاؤ کے باوجود شہریوں کی غیر احتیاطی، نہ ماسک، نہ دستانے، نہ ہی SOPs پر عمل درآمد. حکومت پنجاب کا ہفتے میں 4 دن مارکیٹس اور شاپنگ مالز کھولنے پر غور. وزیر تجارت میاں اسلم اقبال کہتے ہیں دکانیں صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلیں گی. خیبر پختونخوا میں 5 بجتے ہی تمام دکانوں کے شٹر ڈاؤن. بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن سخت کرنے کا عندیہ دے دیا. ملک میں کرونا وائرس مزید 28 زندگیاں نگل گیا. اموات 1225 ہو گئیں. 24 گھنٹے میں 1446 افراد میں وائرس کی تصدیق. تعداد 59,151 تک جا پہنچی. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد 19 دن میں 29,000 سے زائد کیسز سامنے آئے. 586 مریض جان سے گئے. اینٹی باڈی سے کورونا کا علاج. کراچی میں جمعرات سے ٹیسٹ کا آغاز ہوگا. طاہر شمسی کے مطابق ٹیسٹ سے پتہ چلے گا کہ خون میں کورونا وائرس کی اینٹی باڈیز موجود ہیں یا نہیں. پنجاب میں نئی ادویات ایڈوائزری گروپ کی منظوری کے بغیر استعمال کرنے پر پابندی آئے. کورونا پر خرچ ہونے والے اخراجات کی آڈٹ کا بھی حکم. عوام کو کرونا وائرس اور بھوک دونوں سے بچانا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان. کہتے ہیں تنقید کرنے والے زمینی حقائق سے لا علم ہیں. آزمائش کی گھڑی میں اپوزیشن کی جانب سے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے. ٹڈی دل سے فصلوں کو بچانے کے لیے متعلقہ محکموں کو ایکشن کی ہدایت. اسلام آباد میں شہید 2 اہلکار محسن ظفر اور سجاد سپرد خاک. IG اسلام آباد کا چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم. شہید اہلکاروں کی لاشیں پولیس وین سے لے جانے میں بھی برہمی کا اظہار. 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا.
अब और सिंध के देहात में टिड्डी दल की अलगार, कपास, गन्ना, केला और सब्जियों की तैयार फसलों का किया शिकार। सूबाई हुकूमतों का नोटिस, इंतजामिया को टिड्डी दल से निमटने के लिए इक़दामात की हिदायत। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद स्प्रे मुहिम शुरू। दरिया झेलम में पानी की सतह दिन ब दिन बढ़ने लगी। जिला इंतजामिया ने आसपास की आबादियों को फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरिया सतलुज में मूजा आकूका के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कपास, चावल, मकई और चारे की फसलों को शदीद नुकसान। सूरज दिन भर अंदरूने सिंध आग बरसाता रहा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। दादू, शहीद, बेनजीराबाद, लाड़काना, पटीदन और भक्कर में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की मजीद गर्मी और मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। उस ड्रोन सरहद पार भेज दिया, जिस पर पाक फौज ने मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ। ड्रोन 650 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में आ गया। पाक फौज ने फौरी एक्शन दिखाया और भारतीय ड्रोन को मार गिराया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर LOC के रख चक्री सेक्टर पर गिराया गया, जो भारत की जानिब से जासूसी के लिए छोड़ा गया था। मोदी हुकूमत को खित्ते में अमन के लिए खतरा करार दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा शहरियत एक्ट के बाद भारत की जानिब से बांग्लादेश, चीन और नेपाल को धमकियां दी जा रही, जबकि भारत पाकिस्तान को भी झूठे फ्लैग ऑपरेशन की धमकियां दे रहा है। खान की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने मौक़िफ़ दिया कि मोदी सरकार के अज़ाइम पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन चुके हैं। मकबूजा कश्मीर की आज़ाद हैसियत खत्म करना चौथे जनीवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। मोदी हुकूमत भारत में रहने वाली अक़लियतों के लिए भी खतरा है। भारत में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जा रहा है। शायद अपोजिशन को इंक्वायरी रिपोर्ट समझ में नहीं आएगी। नून लीग के दौर में 26 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। वफाक की जानिब से कोई सब्सिडी नहीं दी गई। इस रिपोर्ट के अंदर जो एक अहम हिस्सा है, जिसके ऊपर मैं बात आज बड़ी तफसील से करना चाहूँगा, वो है सब्सिडी का हिस्सा। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बेशतर अपोजिशन वाले तो उन्हें शायद इस रिपोर्ट की समझ नहीं आई कि इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है। PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे। उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल तक चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, शरीफ खानदान की शुगर मिल्स ने 1 रुपए की चीनी बरामद नहीं की। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार ने चीनी पर 5 रुपए 35 पैसे की सब्सिडी की मंजूरी दी। शहजाद अकबर ने असल मुजरिमों को पिछली गली से भगा दिया। उम्मीद थी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा आएगा। हुकूमत कोरोना के बजाय नून लीग से लड़ रही है। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपए चीनी की कीमत थी, और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो 53 रुपए चीनी की कीमत थी। सब्सिडी दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त दी, मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। मसला सब्सिडी का नहीं है, ये जानबूझकर सर्कस इसलिए होता है कि जो होर्डिंग हुई, जो किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट हुई और 40% गिरावट रुपए के बावजूद सब्सिडी दी गई, और जो डाका डाला गया वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। लीगी तर्जुमान ठोस दलील की गैर मौजूदगी में आए बाएं शाएं करने से गुरेज करें। लाहौर से जारी एक बयान में वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि नून लीग के एक कायद इश्तिहारी होने का तमगा लिए लंदन बैठे हैं, जबकि दूसरे कायद लंदन से शर्मिंदा होकर पाकिस्तान अपने ड्राइंग रूम में कैद हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसे कायदीन हो तो दूसरों पर तनकीद करना जचता नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शरीफ बरादरान ने अपने अदवार हुकूमत में एक भी ईद पाकिस्तान में नहीं की। गिरफ्तारी के बाद मजबूरन शहबाज बरादरान को 2017
खतरा में ईद पाकिस्तान करनी पड़ी। वजीर आज़म इमरान खान ने छुट्टियां गुजारने के लिए अपने ही मुल्क को तरजीह दी और तातीलात के दौरान भी अमूर ममलिकत बतरीके एहसन चला रहे हैं। और अभी आपको बताएं, कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद 28 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में अमवात 1225 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 1446 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की तादाद 59,151 तक पहुँच गई। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 23,507 और पंजाब में 21,118 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में जहां बहक अफराद की तादाद 416 तक जा पहुंची। सिंध में 374 और पंजाब में 362 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कराची में कोरोना मुतासरीन खतरे में पड़ गए। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से जिना, सिविल और इंडस अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है, जबकि इंतहाई निगहदाश्त के मरीज वेंटिलेटर्स पर उनके लिए मैसर नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ कामरान शेख हमारे साथ मौजूद है। कामरान, कराची में कोरोना मुतासरीन के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल किरण, ये जिला अस्पताल, इंडस और सिविल अस्पताल 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स की अचानक जो है वो कमी हो गई है। और इसी सिलसिले में जो है पहले भी हमने देखा कि अक्सर जो है वेंटिलेटर की आम हालात में भी कमी होती है, लेकिन कोविड-19 की जब वबा आई तो ये दावे किए गए थे कि वेंटिलेटर की सहूलत, हर मुमकिन सहूलत भी फराहम की जाएगी, वेंटिलेटर्स को बरामद भी किया जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए। पहले ही जो वेंटिलेटर्स की कमी होती है और अब कोविड-19 की सूरत हाल है, तो जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और जिन निजी अस्पतालों में कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वहाँ पर भी वेंटिलेटर्स की कमी है, जिसकी वजह से मरीज वो जो ज्यादा एज के मरीज होते हैं उनको अचानक इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत पड़ती है और वेंट पर उनको जाना पड़ता है जो 60 अबव होते हैं। और कोरोना के जो पेशेंट्स ज्यादातर आ रहे हैं वो 55 अबव और 60 अबव है, जिनको अक्सर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और अगर नाम ले तो उनकी जिंदगी यकीनन खतरे में पड़ सकती है। इससे कबल भी हमने देखा कि डॉक्टर फुरकान हक का जो इंतकाल हुआ तो उनकी वजह मौत जो है वो वेंटिलेटर का ना होना था। बहुत शुक्रिया कामरान शेख। सिंध में कोरोना वायरस मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 24 घंटे में सूबे में 699 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 559 का ताल्लुक कराची से है। अब तक सूबे में 380 अमवात हो चुकी हैं। मुतासरीन की तादाद 24,206 तक जा पहुंची। वज़ीर आला के मुताबिक इस वक्त 235 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 42 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की एक बार फिर अपील की है। हुकूमत पंजाब ने हफ्ते में 4 दिन मार्केटें खोलने और 3 रोज़ बंद करने का फैसला किया है। हतमी फैसला कल होगा। वज़ीर तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा, जो मार्केट SOPs पर अमल नहीं करेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। मार्केटों से तजावीज़ात का भी खात्मा करना होगा। 4 दिन औकात कार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। बेकरीज रात 10 बजे तक, जबकि मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें एक बार फिर शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की